حاجی صاحب نے اس کتاب میں بہت سارے ایسے معلومات کا احاطہ کیا ہے جو نئی نسل کے لیے بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے ہمارے ماضی قریب کے کرگل کے بہت سارے ایسے مقتدر شخصیات کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے اس کتاب میں تفصیلاً تحریر کیا گیا ہے، جو ہمارے نئی نسل کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مثال کے لیے اگر پیش کیا جائے تو ہمارے روحانی شخصیات آیت اللہ شیخ حمزہ فرونہ، آیت اللہ شیخ غلام حسین لالوم جیسے دیگر ایسے بہت سارے شخصیات کے بارے میں ہمیں خود آج کے نسل کو بھی اتنے سارے معلومات نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے ذہن اور اپنے شعور کی روح کا استعمال کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر ایسے بہت سارے تاریخی شواہد اور معلومات کا احاطہ کیا ہے۔ فیروز احمد خان صاحب اور مہمان اعزازی آنریبل ایگزیکٹو کاؤنسلر جناب علی چندن صاحب، ڈاکٹر رضا عباسی صاحب اور آخون اصغر علی بشارت صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آج کے اس رسم رونمائی کو یہاں پر انجام دیجیے گا۔ حاجی باقر علی صاحب مصنف، ان کے تصنیف کردہ کتاب تاریخ کرگل کی رسم رونمائی باقاعدہ طور پر یہاں پہ انجام پذیر ہوں گے۔ ہم یہاں پر علی صاحب کرگل کے ادبی حلقوں میں نہ میدانم کے مترادف ہے۔ ناچیز نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی جگہ حاجی صاحب کو ادبی اور تحقیقاتی محفلوں میں نہیں دیکھا۔ گزشتہ مہینے فیس بک سے تاریخ کرگل نامی کتاب دیکھا۔ یقین مانیے جب تاریخ کرگل کی کتاب پر مصنف حاجی باقر علی دیکھا تو پہلے تو سوچا کوئی اور باقر علی ہوگا۔ جس حاجی باقر علی کو مجھ سمیت پورا کرگل جانتا تھا، ان کا تصور ہی میرے دل و دماغ میں نہیں تھا۔ جب ادبی حلقوں میں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی حاجی باقر علی ہے جن کو میں نزدیک سے اپنے بزرگوں اپوج مرحوم شیخ احمد محمدی کی وساطت سے زمانہ طفلی سے جانتا تھا۔ خیر بہت خوشی ہوئی۔ شام کے تقریباً 5 بجے ایک میٹنگ کے سلسلے میں صدر انجمن جمعیت علماء کے دفتر میں وارد ہوا تو شیخ ناظر المہدی کے ٹیبل پر وہی کتاب دیکھا۔ جستجو بڑی کیونکہ کتاب تاریخ کرگل ابھی بازار میں دستیاب نہیں تھا، اس لیے شیخ ناظر سے گزارش کی کہ مطالعے کے بعد واپس کروں گا، اور وہاں سے بھی امید ختم ہوئی۔ جب میرے عزیز اور مصنف تاریخ کرگل کے بھتیجے ظہیر بابر سے مجھے تاریخ کرگل کا ایک کاپی دستیاب ہوئی تو گھر پہنچنے پر ہی مطالعہ شروع کیا تو معلوم ہوا کہ حاجی باقر علی نے اس کتاب کی تصنیف کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ مصنف نے کتاب کے پیش لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف لکھتے ہیں کتاب کے پیش لفظ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ جاؤ سفر کرو اور غور و فکر کرو اللہ نے کائنات میں کیا کیا بنایا ہے۔ اس لیے میں نے بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، ترکی اور یونان کا سفر کیا۔ اس طرح لداخ میں دمچک، پینگونگ جھیل، تورتک تیکشی، زنسکار، تنگنوزگنگ، زنگلا، ایچو سپی، بٹمبس، بودخربوس، تقپا، ستکچبرق، ککشو، پچری، درگو، شرچے، مشکو ہولیال، امبادرا، سورو بٹالک، شنگلا اور تمام علاقوں سے تاریخی مواد جمع کرنے کی دلچسپی تھی۔ اس دوران لوگوں نے مجھ پر شک کرنا شروع کیا، یہ شخص کس لیے ہم سے پوچھ تاچھ کر رہا ہے
ऑनरेबल एसी मोहम्मद अली चंदन साहब, डॉक्टर रजा अब्बासी साहब, डायरेक्टर एनिमल चीफ हस्बेंड्री यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, राहुल बशारत साहब और ऑनरेबल काउंसिलर टाउन हाजी मोहम्मद अब्बास अब्दुल्ला और बाकी यहाँ पे तशरीफ लाए बाकी सारे मेहमान, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ इस प्रोग्राम में आप लोगों ने शमूलियत किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हाजी साहब ने जो किताब लिखा है, कोशिश किया है हाजी साहब ने, तो एक तो हाजी साहब थोड़ा सा बुजुर्गी की वजह से और थोड़ा सा तबीयत भी उनका थोड़ा सा नासाज है, तो इसलिए हाजी साहब यहाँ पे इस प्रोग्राम में तशरीफ नहीं लाए, तो उनके बिहाफ से मैं आप लोगों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस किताब में हाजी साहब ने कोशिश किया और हाजी साहब ने इसमें लिखा भी है, अगर कोई आप लोगों का भी अगर इसमें कोई सजेशन रहता है तो हम आप सबका वेलकम करता है। और इस प्रोग्राम को अब बड़े पैमाने पे करने के लिए, क्योंकि ये पेंडेमिक का सिस्टम हो गया, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट किया। तो मैं आपसे आप लोगों से फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबका और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, शुक्रिया मेहरबानी। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब अली चंदन साहब, ऑनरेबल काउंसलर टाउन हाजी साहब, डायरेक्टर एनिमल एंड चीफ हस्बेंड्री यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख डॉक्टर रजा अब्बासी साहब, हमारे मशहूर मारूफ मुसन्निफ जनाब अखौन बशारत साहब, ज़हीर साहब, बाकी यहाँ पे तशरीफ लाए हुए तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरे काउंसिल की तरफ से हाजी साहब को पहले तो उनके जन्मदिन पे और इस खूबसूरत किताब को हमारे सामने पेश करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि पहले ही हमारे साजिद साहब ने इस बुक को समराइज करते हुए फरमाया कि हमने कभी भी हाजी साहब को किसी प्रोग्राम में यानी इसके रिलेटेड यानी कभी भी राइटर्स कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी मुशायरा हो, कभी भी हमने हाजी साहब को नहीं देखा। ऐसा ही हम भी जानते हैं कि हमने भी हाजी साहब को, मास्टर बाकर अली साहब को कभी भी मुसन्निफ कहें, राइटर कहें, उस निगाह से मुझे लगता है किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, हम सब जानते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं याद करता हूँ हम छोटे थे तो मेरे ख्याल में हमने पहला करगिल में साइकिल पे सफर करने वाला मुझे लगता है मैंने हाजी साहब को देखा था, जिस वक्त हम मॉडल स्कूल में पढ़ते थे। तो यानी उन तब से लेकर मतलब उनमें एक शौक जरूर था। और उसके बाद आपका जब यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो शुरू हुआ तो उन्होंने एक अहलिशान होटल यहाँ पे खड़ा किया। उससे भी हमें अंदाजा आता है कि उनका विजन कितना था, कितना दूर अंदेश मतलब वो सोचते थे उस जमाने में उस मयार का होटल खड़ा करना। तो उससे भी आप अंदाजा लगता है उस वक्त के जमाने में मुझे लगता है उसने कम से कम 40-50 रूम का होटल उस जमाने में खड़ा किया है। तो उससे भी अंदाजा आता है कि उनका विजन कितना था। उसके अलावा हमने हमेशा हाजी साहब को हर जगह सफर करते हुए देखा, हर किसी ने देखा होगा आपका। कभी वो पाकिस्तान जाते थे, कभी उन्होंने जिक्र भी किया है इस बुक में। और कुछ जब मैं सीसी बनने के शायद 1-1.5 साल के बाद मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि इचू वालों को बहुत प्रॉब्लम है, इचू में रास्ता नहीं है, ये है वो है, मुझसे बात करने लगे। मैंने कहा क्यों? वो तो मुझे पता है हाजी साहब, पहले से पता है, हम कोशिश कर रहे हैं। बोलता है मैं इचू जाके आया। ये तो मुझे लगता है 2 साल पहले की बात है, आप उस वक्त सीसी बना हुआ था। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों गए? आप बोलता है मैं इचू जाके आया। मैंने कहा क्यों गए थे आप? बोलता ही नहीं, मैं थोड़ा सा वहां देखने। उस वक्त भी उन्होंने ये कभी इजहार नहीं किया कि मैं किताब लिख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। उन्हें कहा नहीं मैं ऐसे देखने किया। मैंने कहा आप कैसे गए थे वहां पे, पैदल कैसे? बोलता है मैंने वहां के कुछ लोगों को बुलाया और वहां से कुछ गधे खच्चर वगैरह लाके सामान ले जाके एक दिन वहां वो रुक गया। तो अभी हमें इस किताब से पता चलता है कि वो उस वक्त वहां पे क्यों गए थे। और सबसे खूबसूरत जो चीज इन्होंने इस बुक में बयान किया है कि अभी इन्होंने भी कहा सागर साहब ने कि लोग मुझ पर शक करने लगे।
वाकई शक करने लगे। मतलब ये आपका हमारे सोसाइटी में, हमारे माहौल में ये बात चलता था हमेशा कि हाजी साहब पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है। हर कोई इसके बारे में बातें करता था, ये कोई फ्रैंक है आप तो। लेकिन अब ये बुक के सामने हमें एक प्रूव कर दिखाया कि वो किस चीज के लिए लोगों से मिलते थे, कहाँ जाते थे। तो ये एक चीज एक तो इसके बारे में हाजी साहब का अपना क्या रुझान है पब्लिक तक थोड़ा पहुंचा, क्योंकि अभी सब ने कहा कि हाजी साहब को कभी इस नज़र से दुनिया ने नहीं देखा। हाँ इनायत साहब, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आप लोग तशरीफ़ लाए। ये किताब हाजी साहब ने, मेरे चाचा हाजी बाकर अली साहब ने लिखा है। हम खुद घर के आदमी बैठ के हमें भी ये पता नहीं था कि हाजी साहब ये किताब लिख रहा है, क्योंकि हाजी साहब को तारीख़ का बड़ा शौक़ था। हर जगह तारीख़ को ढूंढ के हाजी साहब, यहाँ से इस किताब में भी जिक्र है, हाजी साहब एथेंस तक गया है इस किताब को लिखने के लिए तारीख़ के तलाश में। तो अभी मुझे 2 महीना पहले पता चला जब मैं जम्मू गया, तो हाजी साहब ने मुझे बताया कि मैं किताब लिख रहा हूँ और ये मुकम्मल हो गया है। और हाजी साहब ने मुझे यहाँ तक बोला भाई अभी किसी को नहीं बोलना है। तो इसलिए हाजी साहब को ये किताब लिखने का बड़ा ही शौक़ था। अभी पता चलता है कि लगभग हाजी साहब इस किताब को लिखने के लिए पिछले 30-40 साल से लगे हुए थे जी। तो